بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم ترین ڈیولپمنٹ سے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان میں آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس کی سماعت میں عدالت نے جے آئی ٹی رپورٹ پر اعظم سواتی کے وکیل علی ظفر کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اعظم سواتی سے جے آئی ٹی رپورٹ پر جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا گیا۔ اعظم سواتی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیو جہانزیب عباسی سے۔ جی آپ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، ابھی تک اس کیس میں اور کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جب سے تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے یہ دوسرا واقعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا گیا۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے تھا، اب یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی، جے آئی ٹی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پیش کی گئی۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ وفاقی وزیر تحریک انصاف کے اعظم سواتی انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایک پختون خاندان کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ اعظم سواتی اور ان کے ملازمین نے جو وقوع بنایا تھا کہ جو پختون خاندان ہے ان کی گائے ان کے زمین میں آئی تھی، وہ واقعہ من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ یہ بھی جے آئی ٹی میں انکشاف کیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اعظم سواتی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور اپنے آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایف آئی آر کروائی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے یہ اعظم سواتی کے وکیل علی ظفر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے اوپر اپنا جواب دے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور کے اوپر یہ ریمارکس کیے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)F موجود ہے، ہم آرٹیکل 62(1)F کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 62(1)F یہ غیر صادق اور غیر امین رکن قومی یا صوبائی اسمبلی کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جو متاثرہ پختون خاندان ہے اس کو روستم پہ بلایا اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ نے راضی نامہ کیوں کیا، ہم اس راضی نامے کو نہیں مانتے۔ چیف جسٹس کے یہ اہم ریمارکس ہیں۔ تو اب ان ریمارکس کے بعد جو راضی نامہ دونوں فریقین کے مابین ہوا تھا وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ اب اس راضی نامے کو بھی منسوخ کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس واقعے کو مکمل طور کے اوپر دیکھیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اعظم سواتی کی جتنے بھی پراپرٹیز ہیں، تمام جائیدادیں ہیں، اس کی جو تفصیل جے آئی ٹی میں دی گئی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اعظم سواتی جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنے عہدے کے اوپر جو ہے وہ رہنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ 100 دنوں میں حکومت نے کیا کھویا کیا پایا؟ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک جاری ہے۔ اس اجلاس میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے سمیت 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ افغان سرحد پر باڑھ اور لائٹنگ کے اگلے مرحلے کی منظوری دی جائے گی۔ امن و امان اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 100 دنوں میں حکومت نے کیا کھویا کیا پایا؟ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں کابینہ نے حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سر جوڑ لیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کے لیے سمری اجلاس میں پیش کر دی۔ پاک افغان سرحد پر باڑھ اور لائٹنگ کے اگلے مرحلے کی منظوری اور وزارت تجارت کی نئے نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اور پاکستان نے امن کے لیے ایک اور قدم بڑھا دیا۔ بھارت شرپسندی میں 2 قدم آگے آ گیا۔ کرتارپور کوریڈور کے سنگ بنیاد رکھنے کے تاریخ ساز دن کے اگلے ہی روز بھارتی آرمی چیف پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ آرمی چیف نے گیدڑ بھبکی دی ہے، پاکستان نے گلگت بلتستان کی حیثیت بدلنے کی کوشش کی تو اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے وفاقی کابینہ میں آج گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی سمری پیش کی جائے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ پاکستان نے امن کے لیے ایک قدم بڑھایا تو بھارت شرپسندی میں 2 قدم آگے آ گیا۔ کرتارپور کوریڈور کے سنگ بنیاد رکھنے کے تاریخ ساز دن کے اگلے ہی روز بھارتی آرمی چیف پاکستان کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ آرمی چیف نے گیدڑ بھبکی دی ہے، پاکستان نے گلگت بلتستان کی حیثیت بدلنے کی کوشش کی تو اچھے نتائج نہیں ہوں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، بھارتی آرمی چیف ایک بار پھر گیدڑ بھبکیاں دینے پر اتر آیا۔
गिरगिल बल्तिस्तान की हैसियत बदली तो अच्छे नताइज नहीं होंगे, ये कहना था भारतीय आर्मी चीफ का। और इक़्तिदार में कप्तान के 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। 100 रोज़ की कहानी क्या है, किस हद तक ये 100 रोज़ में हमारी हुकूमत अपने वादे पूरे करने में कामयाब रही और रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की के उन्वान से आज इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमती कारकर्दगी पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे के बारे में बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कफ़ायत शारी मुहिम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम, खारजा पॉलिसी के तहत किए जाने वाले इक़दामात से आगाह करेंगे। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। शहबाज अहमद, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं? बिल्कुल, आज दोपहर 3 बजे ये तकरीब होगी जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और इस तकरीब में वफाकी वुज़रा मुमलिकत, मशीर, मुआविन खुसूसी जो है तकरीब में शिरकत करेंगे। और इसकी जो टैगलाइन रखी है वो रखी है कि रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की, और जिसमें तमाम वफाकी वुज़रा जो है उन्होंने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी है। और वज़ीर-ए-आज़म तमाम जो कारकर्दगी है 100 रोज़ उस पर कौम को एतमाद में लेंगे। हमारे ज़राए ने बताया कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जो चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म जो कि 100 रोज में जो उन्होंने वादा किया था कि 6 पॉइंट्स हैं जिन पर तहरीक इंसाफ जो है वो काम करेगी। शहबाज अहमद, आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। इंतखाबात से कबल और ऐवान इक़्तिदार में पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और उसकी टीम के दावे, वादे और ऐलानात क्या थे, उन पर कितना अमल किया गया, कौन सा वादा पूरा हुआ, कौन सा ऐलान हकीकत में बदला, पीटीआई की हुकूमत की 100 रोज़ा दास्तान की झलक देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो भी कहना जी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जाऊंगा, उनको आपने मुस्तरद करना है। इसलिए करना है कि ये है नजरियाती इलेक्शन, ये इंडिपेंडेंस का इलेक्शन नहीं है। बुखारी ब्रिटिश नेशनल है, बरतानिया में बिजनेस करते हैं, वो ब्रिटिश इनडायरेक्ट रेवेन्यू उनसे पूछे कि तुम्हारी कंपनीज हैं, पाकिस्तान के तो नेशनल ही नहीं है। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हुक्मरान आज तक याची करते हैं, मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आइंदा फैसला किया है, जहाज वज़ीर-ए-आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब कम से कम अगले 3 महीने कोई गैर मुल्की दौरा करने का इरादा नहीं रखते। इमरान खान पहले दिन $100 अरब बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और $100 अरब आपके ऊपर लगाएगा। इक़्तिदार में आने से पहले 100 रोज़ प्लान में अवामी बेहतरी और रिलीफ के दावे तो किए गए, लेकिन हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से अवाम मुतमईन दिखाई नहीं देते। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ आम आदमी की मुश्किलात भी बढ़ती चली जा रही हैं। मोहम्मद अलबर रईस की रिपोर्ट। इलेक्शन से कब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है का नारा हर जुबान से सुनने को मिला, मगर महंगाई के सुनामी ने आवाम के होश उड़ा दिए। पीटीआई की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए, लेकिन हुकूमत अपनी कारकर्दगी से आवाम को खुश न कर सकी। दूध फरोशों का कहना है कि इस हुकूमत ने गैस, बिजली महंगी कर दी। 1 लाख से जायद का बिल हर माह अदा करना पड़ता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं तब्दीली आई, हमारे खर्चे और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैस महंगी हो गई है और बिजली भी महंगी हो गई है, पहले कम बिल आता था, अब लाख से ऊपर आ रहा है। दूसरी जानिब तालिबा इल्मों का कहना है पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क्या तब्दीली आई? अगर वही पेट्रोल जो हमने 73 रुपये लीटर पहले डलवाते थे हुकूमत आने से पहले, तो वही अब हम 100 रुपये में डलवा रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या तब्दीली आ गई है? हमारी तरफ से जो मर्जी तब्दीली लाएं, लेकिन हमें तो वही जिधर 73 देने पड़ते थे 100 दे के स्कूल पहुँचते हैं, तो ये हमारे लिए तो नुकसान की बात ही है ना। मुलाजम पेशा अफराद कहते हैं इस हुकूमत ने महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, गरीब आदमी पिस कर रह गया। सर तब्दीली तो कोई नहीं आई, हम तो खसारे में ही जा रहे हैं जी।
कारोबार की ऐसी की तैसी हो गई है। पेट्रोल देख लें जी कहाँ तक चला गया जी, लाइट महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, हम कहाँ जाएं जी? आप हमें बताएं। 100 रोज़ा प्लान में जी हम 100 रोज़ का प्लान लेके बैठे हुए हैं जी, तब्दीली का नारा लगा के आए हैं जी, तब्दीली आएगी, क्या खाक तब्दीली आएगी जी? लो सर, मैं इधर काम करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, 300 रुपया मेरी दिहाड़ी है, 20-15 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है। हम बच्चे को खिलाएं कि बिजली का बिल दें? गरीब आदमी के मुताबिक हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान और कारकर्दगी में गरीब आदमी के लिए रिलीफ की बातें महज बातें ही नजर आई हैं। कैमरामैन अरफान के साथ मोहम्मद अलबर रईस, न्यूज़ लाहौर। और इक़्तिदार के पहले रोज़ तब्दीली सरकार ने कई वादे से मुकर गई, बड़े बड़े यू टर्न दिए, अहम मकासद हासिल करने में भी नाकाम रहे। हुकूमत की नाकामियों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। वादों के बरक्स IMF जाने की मंजूरी, हुकूमत की बड़ी नाकामी। साबिका हुकूमत की बड़ी काबीना रखने पर तनकीद, लेकिन खुद भी काबीना को मुख्तसर रखने में नाकाम। डॉलर नीचे लाने में भी नाकाम रहे। पंजाब पुलिस में इस्लाहात का वादा भी नामुकम्मल। IG पंजाब ताहिर महमूद को ओहदे से हटाया। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान हर हफ्ते असेंबली में आने का वादा भी पूरा ना कर सके। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। हल्के खोलने के लिए तैयार वजीर आजम ने हल्का 131 में स्टे ऑर्डर ले लिया। किसानों के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाई जा सके। 100 दिनों में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता रहा। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के हवाले से अब तक महज एक कमेटी ही तश्कील दी गई। 100 दिनों में कोई सियाहती पॉलिसी सामने न आ सकी। जराइम के खात्मे के लिए इक़दाम भी नहीं किए जा सके। हुकूमत ने मेट्रो बसेस के किराए पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा कर दिया। सीनियर पुलिस अफसर ताहिर दावर का अफगानिस्तान में कत्ल भी हुकूमत की नाकामी करार दिया गया। आवाम की हालत बदलेगी तो तब्दीली आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम पर सरमायाकारी कर रही है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने मुलाकात की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने माजी में नुमाइशी मनसूबों पर कौमी वसाइल ज़ाया करने पर शहबाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि साबिक अदवार के मनसूबों से आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। सो इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट 40,594 की सतह पर आ गई। मज़ीद भी डिटेल्स आपको देंगे। इस हवाले से कराची में से खबर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी जा रही है। सो इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट 40,594 की सतह पर आ गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। सो इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, जिस तरह से कराची स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स है, इसी तरह से हुकूमत के भी 100 दिन मुकम्मल हुए हैं। मगर इन 100 दिनों में जो है हुकूमत से जो माशी वादे किए थे, जो अपनी मनसूबाबंदी और प्लान दिया था, वो उसके हवाले से जो है सरमायाकारों को तशवीश लाहक है और वो उनकी नज़र में वो पूरे नहीं हो सके हैं। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है वो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स पे अपनी सरमायाकारी की जाती है और इस वक्त सरमायाकारी ये देख रहे हैं, जो अभी माशी मीशत के हवाले से खबरें आई हैं कि वो पाकिस्तानी कंपनियों का मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर नहीं देख रहे हैं। इस वजह से वो हिस्सेस की खरीदारी के बजाय वो फरोख्त पर तवज्जो दे रही हैं और यही जो मार्केट के ट्रेंड को जो है मनफी किए हुए है। शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नए प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल जारी हैं। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने अदालत को कहा कि इस केस में मुलजिम ने हर प्लेटफॉर्म पर अलग रुख दिया। रेफरेंस में 26 गवाह थे, 22 का बयान रिकॉर्ड हुआ। गवाह नौरीन शहजादी ने हुसैन नवाज के अकाउंट में हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट से आने वाली रकूम का रिकॉर्ड पेश किया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। साद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में।
جی بالکل، احتساب عدالت میں جو ہے حتمی دلائل کا سلسلہ جو ہے وہ نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے جاری ہے، اور انہوں نے آج حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں ملزم نے ہر پلیٹ فارم پر جو ہے الگ رخ دیا ہے، اور اس کیس کی تفتیش 2 اگست 2017 سے شروع ہوئی، اور اس کیس کے تفتیشی افسر محبوب عالم تھے، اور اس کیس میں 3 ملزم ہیں۔ یہ ریفرنس 15 ستمبر 2017 کو دائر ہوا، اور اس کیس میں 4 ٹائم ہوا 19 اکتوبر 2017 کو، اور اس میں ضمنی ریفرنس دائر ہوئے 14 فروری 2018 کو۔ مزید جو ہے نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو حتمی دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ گواہ جہانگیر احمد نے تینوں ملزمان کا 1996 سے 2016 کا جو ہے ٹیکس ریکارڈ پیش کیا، اور گواہ طیب معظم نے نواز شریف کے 5 اکاؤنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا۔ مزید نئے پروسیکیوٹر نے حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اکاؤنٹس پاکستانی رویے اور غیر ملکی پاکستانی روپے اور غیر ملکی کرنسی کے تھے، اور ان اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی رقم آئی اور گئی۔ نئے پروسیکیوٹر نے مزید حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یاسر شبیر نے نواز شریف اور مریم نواز کے اکاؤنٹ کی تفصیلات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ گواہ عمر دراز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گواہ عمر دراز 2 مرتبہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور گواہ آفاق احمد نے قطری شہزادے کا پہلا خط جو ہے JIT کو پہنچایا تھا۔ گواہ علی رضا سے متعلق انہوں نے کہا کہ گواہ علی رضا نے بہت شکریہ سعد بن الطاف، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور سپریم کورٹ میں آشیانہ اقبال اسکینڈل کے ملزمان کی ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت۔ نیب کی جانب سے ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس سے دائر کرنے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت کی استدعا مسترد۔ عدالت نے نیب کو 2 ہفتے میں ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس سے دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ آشیانہ اقبال اسکینڈل میں ملزم سجاد بھٹا اور دیگر ملزم جس میں منیر ضیاء نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ کیس کی سماعت جسٹس عصمت سعید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اور دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال اسکینڈل میں گرفتار فواد حسن فواد اور احد چیمہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ دونوں ملزمان کو 13 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آج سماعت کے دوران فواد حسن فواد کو معمول سے ہٹ کر ہتکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا۔ پیشی کے بعد فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ فواد حسن فواد کو عام قیدیوں کے ساتھ احتساب عدالت کے باہر موجود بینچ پر بٹھایا گیا۔ نیب کی جانب سے فواد حسن فواد کے خلاف دستاویزات بھی پیش کی گئیں۔ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سندھ میں وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں کہ علیمہ خان سکینڈل سے عمران خان کا بھی تعلق ہے۔ علیمہ خان سکینڈل کی منصفانہ تحقیقات چاہتے ہیں۔ علیمہ خان کی جانب سے جرمانے کی ادائیگی اقرار جرم ہے۔ عمران خان علیمہ خان کی صفائی دیں۔ اپنے بیان میں سعید غنی نے کہا کہ علیمہ خان خیراتی اداروں کے لیے فنڈز اکٹھے کرتی ہیں۔ اگر معاملہ چندہ چوری کا ہے تو افسوسناک ہوگا۔ لاٹلے کے لیے الگ قانون نہیں مانیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار ڈیم فنڈ ریزنگ مہم کے سلسلے میں برطانیہ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ لندن میں ایئرپورٹ پر گفتگو میں چیف جسٹس نے کہا کہ جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے اس کی محافظ پوری قوم ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی محبت وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ چیف جسٹس کے دورے کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر عطیات دیے۔ جو تحریک میں نے شروع کی ہے اب اس کی پوری قوم محافظ ہے، اور اس دورے سے وطن واپسی پر ایئرپورٹ پر گفتگو کی چیف جسٹس نے اوورسیز پاکستانیوں کی محبت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب وہ دورے پر تھے تو اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر عطیات دیے اور اس مہم میں حصہ لیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کی کرتارپور دربار صاحب کو دوبارہ آمد۔ بابا گرو نانک کے دربار پر تنہائی میں لمحات گزارے۔ انتظامیہ کی جانب سے نوجوت سنگھ سدھو کو تلوار اور چادر کا تحفہ دیا گیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا ہے کہ خوش بختی ہے کہ راستہ کھلنے کا اعزاز ملا، راہداری کے علاقے میں تجارت کو بھی فروغ ملے گی۔ مزید بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ سابق بھارتی کرکٹر نے بابا گرو نانک کے دربار پر تنہائی میں بھی کچھ لمحات گزارے، ان کو وہاں پر جو ہے وہ تلوار اور چادر کا تحفہ دیا گیا۔ دنیا میں منفی پروپیگنڈے کا ایک ہی نام بھارتی میڈیا۔ پاکستان کی جانب سے امن کا راستہ کھولنے پر بھارتی میڈیا بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ پاکستان نے چاولہ کو دعوت دے کر بھارت کو دھوکہ دیا۔ بھارتی میڈیا نے سدھو کے خلاف بھی خوب زہر اگلا۔ سدھو کے لیے پاکستان پہلے اور بھارت بعد میں ہے۔ پہلے سدھو کی جپھی پر اعتراض، اب چاولہ کے مسافے سے ڈر۔ ام کے ہاتھ کیا ملے، بھارتی میڈیا کی چیخیں نکل گئی۔ بہت بھیانک تصویر ہے
चाल ऐसी तो नहीं चल गई जिसको अंडू करना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय मीडिया का एक ही राग, अमन की राह में दहशत का वार। किसी ने गद्दार कहा तो कोई सिद्धू को पाकिस्तानी मोहरा करार देने में मसरूफ है। चावला ने आर्मी चीफ से हाथ क्यों मिलाया? भारतीय मीडिया ने करतारपुर राहदारी को भी सिखों की खालिस्तान तहरीक से जोड़ दिया। वेलकम है। कराची फेडरल बी एरिया से मुनशियात फरोश जोड़ा पकड़ा गया। एसएसपी आरिफ असलम राव के मुताबिक मुल्जिमान ने हेरोइन की सप्लाई के लिए रिक्शा खरीद रखा था। औरत होने की वजह से पुलिस चेकिंग नहीं करती थी। मुल्जिमा पाखंदा अयूब मुसाफिर बनकर रिक्शे में आती और वाटर पंप पर हेरोइन सप्लाई करके फरार हो जाती। वुमेन वेस्ट जोन पुलिस की फेडरल बी एरिया में यह कार्रवाई। रिक्शे में हेरोइन सप्लाई करने वाला जोड़ा गिरफ्तार। एसएसपी आरिफ असलम राव कराची के मुताबिक मुल्जिमान ने हेरोइन की सप्लाई के लिए रिक्शा खरीद रखा था। औरत होने की वजह से पुलिस चेकिंग नहीं करती थी। मुल्जिमा पाखंदा अयूब मुसाफिर बनकर रिक्शे में आती और वाटर पंप पर हेरोइन सप्लाई करके फरार हो जाती। और चिकन की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शेराज। लीजिए जनाब, अब 1 किलो चिकन की खरीदारी के लिए 300 रुपए दरकार हैं। मतवसत तबके की मेहमान नवाजी का वाहिद जरिया अब उनकी पहुंच से दूर हो गया है। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान हैं। चिकन की रेट जो है ना वो बड़े गोश्त से भी ज्यादा हो चुका है। अब तो गरीब जो है आवाम वो तो ये खरीद भी नहीं सकती अब चिकन भी। बस ये पता नहीं क्या कर रहे हैं पीटीआई वाले, इनका कुछ समझ नहीं आ रहे। शहरी कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीबों को महंगाई से निजात के दावों के बावजूद चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि दुकानदारों ने चिकन की बढ़ती हुई कीमतों का सारा मलबा पोल्ट्री फार्म मालिकान पर डाल दिया। हर साल जो फार्मर है ना वो रेट बढ़ा देते हैं और अपनी कमाइयों में इजाफा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे दुकानदार के लिए परेशानी होती है क्योंकि कोई कस्टमर चिकन नहीं लेता। हुकूमत की जानब से चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएं तो शहरी चिकन को बाआसानी खरीद सकते हैं। चिकन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी बिना पर शहरी इंतहाई परेशान है। कैमरामैन शबाज अली के साथ वकास शेराज, न्यू फैसलाबाद। कराची में आइडियाज़ 2018 का कामयाब इनेकाद जारी है। पाक पेरिया के स्टॉल पर मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक के मंदूबीन ने दौरा किया। गैर मुल्की मंदूबीन को पाक पेरिया में ट्रेनिंग की सहूलियात और पाकिस्तान में जहाज़ों की तैयारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आइडियाज़ 2018 में सबसे ज़्यादा स्टॉल्स चीन की जानिब से लगाए गए, जो मुल्की और गैर मुल्की वफूद समेत शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सिद्रा डार से। जी, आइडियाज़ 2018 की नुमाइश जारी है और हम देख रहे हैं कि जहां पर मुल्की वफूद यहाँ पर हैं, वहीं पर गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं वो चाइना की तरफ से और तुर्की की जानिब से हैं। जो लोग यहाँ विजिटर्स के लिए आए हैं उनसे जान लेते हैं कि वो इस आइडियाज़ को किस तरह से देखते हैं। मैं ये चौथा आइडियाज़ देख रहा हूँ और इस दफ़ा सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। और वाकई आपकी बात सही है कि चाइना का जो ये पोडियम है या चाइना का जो इनक्लोजर है ये सबसे बड़ा है इस आइडिया में। उनकी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्री से लेके डिफेंस इंडस्ट्री से लेके शिपिंग इंडस्ट्री से लेके ये सब इधर आए हुए हैं। आज की जो आइडियाज़ है उसमें हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वफूद शिरकत कर रहे हैं बल्कि चाइना का सबसे बड़ा स्टॉल भी यहाँ मौजूद है और ना सिर्फ लोग वहाँ से आए हुए बल्कि यहाँ के लोग भी उनको सराह रहे हैं। वेलकम बैक। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के ज़ेर तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और मैनेजमेंट रिसर्च जारी है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद स्कॉलर्स कहते हैं इस तरह की रिसर्च कॉन्फ्रेंस होती रहेगी तभी पाकिस्तान में तहकीक का कल्चर फ़रोग पाएगा। कॉन्फ्रेंस में हमारे रिपोर्टर ज़ुबैर साजिद ढिल्लू मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक हुआ। जी ज़ुबैर। हाँ जी, देखिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वीक जारी है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट रिसर्च जो है उसका आज पहला रोज़ जो जारी है। कॉन्फ्रेंस में जो है वो वज़ीर एजुकेशन जो है, मिनिस्टर एजुकेशन के हुमायूं यासर, उन्होंने शिरकत की है। मेरे साथ कुछ PhD स्कॉलर्स मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इन्हें क्या बेनिफिट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वी आर मीटिंग और इंटरेक्टिंग विद द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड द मैच्योर स्कॉलर्स
एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज़ हेल्पिंग अस इन वाइडनिंग और विजन, और हम बहुत खुश हैं। स्पेशली सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उनका एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हो सके, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ रिसर्च वर्क में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं बेहतर से बेहतर तहकीकात की जाएँ और नए से नए जो है रिसर्च पेपर भी जनरेट किए जाएँ और नई से नई तहकीक भी की जा सके। ये कॉन्फ्रेंस जारी है, आज सारा दिन जारी रहेगी। कल जो है कल दूसरा रोज़ होगा कॉन्फ्रेंस का और कल शाम को जाकर ये कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर होगी। जी आपको बताएं कि नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ पिया घर सुधार गईं। लाहौर में शादी की तकरीब में खवातीन क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। सहेलियों ने दुल्हन के साथ खूब पोस्ट बनवाए।